Hello, viewers. Today we have a very interesting guest with City 360. And the best part of our guest, who is Charul Malik, is she has been in the media for quite a long time. And she was the favorite of the chief editors because of the way she used to handle the interview. And as an anchor, she was equally very comfortable. And she has been receiving compliments from tycoons of media like Dr. Pranav Roy and Mr. Rajat Sharma. Rajat Sharma, definitely, I would like to mention because he's my guru who had taught me how to work in television when I was in Z. And incidentally, Charul has also worked for India TV. Welcome, Charul, to City 360. It's a great pleasure for all of us. Thank you so much, Irfanji. Thank you for having me. And it's lovely seeing you, meeting you, connecting with you after almost 2 decades, if I'm not mistaken. Yeah, almost. Almost. Yeah. So So there were many queries before we while taking classes. I have been counseling and teaching media students in various universities and colleges, and I keep on talking about you people, and they were very interested to know about your journey. So, from on the behalf of my students, I'd be asking you a few questions. The first question Sure. is how difficult or how easy was your journey? I think Irfan, my journey was not very difficult or not very easy. It was very challenging in a way that I never had a godfather, and I am not from media background. Your students are really honored and they are privileged, lucky because they are going through and they are under your guidance, learning from you. But I don't carry any degree in mass communication journalism. I'm a law graduate. तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं कहूंगी, चैलेंजिंग था इस फील्ड में आना। बट मैंने डे वन से ये सोच लिया था व्हेन आई वाज इन क्लास फोर्थ और फिफ्थ कि मुझे कैमरा फेस करना है। अब वो कैमरा कब फेस करूंगी, कैसे करूंगी, क्या मीडियम रहेगा, क्या मेरा बीट रहेगा, ये तो जब बच्चे होते हैं इतना आइडिया नहीं होता था। बट ये सोच लिया था, तो मैंने एज अ चैलेंज ले लिया था इस चीज को कि आई हैव टू गेट इनटू समथिंग दैट हैज अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी। एंड तो मेरी ये जर्नी बहुत ही चैलेंजिंग रही है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। एंड आई थिंक हम सब लोग मेहनत करते हैं, मैंने इरफान आपको भी देखा है बहुत मेहनत करते हुए। You used to handle, you were a correspondent with the Sahara, and you were brilliant and very fluent in English. और हम लोग हिंदी मीडियम बोलूंगी क्योंकि हमारा जो झुकाव था वो हिंदी चैनल था हमारा सहारा, और मैं एक हिंदी न्यूज एंकर थी, तो मैं आपको दूर से देखती थी जब आप नॉन स्टॉप इंग्लिश में बात करते थे। तो कहीं ना कहीं एक फ्लुएंट रहना, अपने काम को जानना समझना, ऐसे ही मैंने बचपन से मेरे मीडियम को, मेरी बीट को समझ लिया था कि मुझे आना है तो कैमरा के सामने आना है। और मेरे नाना जी एमपी एमएलए आईएएस ऑफिसर थे, बहुत अच्छा बोलते थे। माय मॉम वाज अ हिंदी प्रोफेसर। तो हमने बचपन से हमारे घर में सही उच्चारण कैसे किया जाए, सही तरीके से अपनी बात को कैसे पेश किया जाए, खुद को कैसे, खुद को भी रिप्रेजेंट करना होता है, राइट, खुद को सिर्फ प्रेजेंट नहीं करना होता है। तो हमने ऐसी चीजें बहुत बचपन से देखी, सीखी। और मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत रही, बहुत ही चैलेंजिंग रही क्योंकि मैंने ऑड आवर्स में काम किया। मैंने मोस्टली जो हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम है हर चैनल में, मैंने मोस्टली वो किया जिसके लिए मुझे नींद को बाय बोलना पड़ा और जागते रहना पड़ा, जो कहते हैं ना जागते रहो। तो वो करते हुए, लाइव कैमरा फेस करते हुए, जहां पर आपको फैक्चुअली करेक्ट चीजें बोलनी है। एंड इन फैक्ट यू नो हाउ इट इज व्हेन I वी आर know, लाइव। I know, इट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी टू I जस्ट know. बी लाइव एंड जस्ट से एनीथिंग। हमें बहुत सोच के समझ के बात कहनी पड़ती है, और सोचने समझने का समय नहीं होता है, हैरानी की बात ये। I was talking to my VT editor, and he was telling me he did some research on you, and he informed me that your name is there in the Limca's book of record. And he was telling me that you had been skating and in taking interview. I mean, how was the experience? It was another surprise package for me.
एक दिन मुझे कॉल आता है हमारे बॉस का, जो कि अब जियो हेड करते हैं, उदय शंकर जी का, और Oh my God. शाजी जमा भी थे हमारे Right, साथ, right. जो हमारा पूरा ही वाज रिप्रेजेंटिंग अस एंड वी वर वर्किंग अंडर हिज गाइडेंस. सो ही कॉल्ड मी, ही सेड, चावल, यू नो हाउ टू स्केट. रात को फोन आया. आई सेड, वही जैसे मैंने कहा ना, हम सोचते नहीं है, सीधे हाँ बोलते हैं. ये भी एक बड़ी बात होती है जिसमें आप ना कुछ बोलते ही नहीं हो, आपकी डिक्शनरी में ना वर्ड नहीं होता है. सो आई Right. सेड यस यस, व्हाई नॉट. अब मैंने बचपन में स्केटिंग की थी कभी. हमारा घर काफी बड़ा था चंडीगढ़ में. मैं और मेरी ट्विन सिस्टर है पारुल, हम लोग ऐसे ही मजे मजे में स्केटिंग करते थे घर में ही. हमने प्रोफेशनली सीखा नहीं है. सो आई सेड, सर यस यस, व्हाई नॉट. Then he said, कल दीपिका पादुकोण आ रही हैं with नील नितिन मुकेश. They are here to project their film called Lafange Parinde, and she might be doing skating since she has gone through rigorous skating training, and because since she's playing the role of a skating instructor, so I mean it is going to be very challenging. ये बहुत बहुत मेहनत से उन्होंने इस रोल को निभाया है, और हम चाहते हैं कि आप सिंबॉलिकली उनके साथ स्केट करें या उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें. I Hmm. said okay, fine. And I was live from 6 a.m. in the morning doing the general bulletins. Hmm. And till 12 I was doing something else. 12 बजे के बाद मेरा रोल अलग होने वाला था. Hmm. एंड HR हेड थे हमारे मिस्टर आनंद लटवाल. उनके Hmm. बेटे के स्केट्स आए. अब मैंने कपड़े चेंज किए. मुझे ये भी नहीं पता वो स्केट्स कैसे हैं, पहन के मैं थोड़ा वार्म अप कर लूं. Hmm. टाइम ही नहीं था. फटाफट पहने, और उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो गया. PCR से आवाज आ गई कान में, जल्दी जल्दी एंकर कहाँ है, दीपिका आ गई है, नील आ गए हैं. अब उन्होंने ये पता किया, उनकी जो टीम आई थी, कि ये तो लाइव है. Hmm. अब हम सुबह से, हमारा जो नीचे बैंड चलता है, जो Right. आपके चैनल पे भी चल रहा होगा या आप चलाएंगे, Right, तो right. उस पे लिखा आया था, पहली बार इतिहास में ऐसा होगा जब आप लाइव स्केटिंग करते हुए देखेंगे. अब Hmm. ये नाम मेंशन नहीं हो रहा है कि कौन. Hmm. अब नाक का सवाल, इज्जत पे बात आ गई. मेरे बॉस ने मुझे कहा कान में, चारुल अब देखो भाई, ऐसा है, हम तो ये सुबह से प्रमोट कर रहे हैं और जी. टीजर चल रहा है हमारा, दे धड़ाधड़, अब तुम कर लोगी मैनेज. आई सेड, दीपिका कर रही है ना स्केटिंग. नहीं नहीं, शी इज नॉट डूइंग, शी इज नॉट कंफर्टेबल. Hmm. आई सेड ओके, टाइम भी नहीं है नाम बोलने का. Hmm. And then it's just started. It was a 5 camera show, and I was having the EP in my ear, and Right. all the commands, I had to follow because I was the only one who was, patched from PCR to the studios. I said, okay, fine. Hmm. And it started. बस 1 घंटा वो चला, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस किए. Hmm. मैं पूरा स्केटिंग करती रही उनके आसपास. बहुत बड़ा कैफेटेरिया था हमारा, पूरा उन्होंने खाली करवा लिया था. Hmm. एंड नील बैठे थे, यहाँ दीपिका बैठी थी, और मेरे कान में कमांड्स आए, खड़े मत रहिए, स्केटिंग करते रहिए, सवाल पूछिए, ब्रेक लीजिए, आगे ये कीजिए. एंड इट वॉज ए ½ आवर इंटरव्यू, राइट. बट वो Right. इतना स्मूथली, इतना अच्छा, इतना एंटरटेनिंग वे से चल रहा था कि रोका ही नहीं उन्होंने. कान में आवाज आ रही है कि आधा घंटा और स्ट्रेच कर देते हैं, Hmm. ब्रेक्स गिरा दो. हाउ Right, वी right. टॉकिंग इन इंग्लिश. ब्रेक्स Yes, गिरा yes. दो, अरे चलाओ चलाओ. And then it went for 1 hour live, and I don't know how I did it, but it was flawless. And देखो ऐसा है, मैं गिरती तो भी रिकॉर्ड बनता. एक एंकर लाइव गिर गई, और नहीं गिरती तो भी रिकॉर्ड बन गया, है ना. क्योंकि Right. वर्ल्ड में ऐसा किसी एंकर ने रिस्क नहीं लिया है. और सच बताऊं तो मैंने ये सोचा ही नहीं कि रिस्की रहने वाला है, क्योंकि Hmm. मजे मजे में इट जस्ट हो गया. बस जैसे बोलते हैं ना, एक रिकॉर्ड बनना था I जिसके know. बारे में आप God सोचते bless नहीं you. है. Yeah, it is amazing. थैंक It is यू. amazing. But how has थैंक यू. been your journey now since you are totally into OTT platforms? Now, from news, you are into acting. And we find this program, especially Bhabiji Ghar Pe Hain, especially people like Saxena, the character Saxena, and आई Vibhuti. लाइक Vibhuti is इट. my favorite. ओके. So, yeah, I mean, you guys are just amazing. I mean, the kind of humor is there. I also have conceived a few things. I would be sending it to you as a script, which would be very powerful. I was thinking of Rusa as a character and how people are going to move around you. So, how do you find Rusa as a character? She सी, in the serial, she seems to be a material girl, but as far as I know, you are totally not material. you are absolutely right. You know me very well. The show is really happening, and I'm lucky to be part of the same show. Rusa is Commissioner Sali, who is very classy, who is very elite, and who is like Charul. Hmm. On the face of it, like मैं जैसा दिखती हूँ,
लोगों को मैं दिखती हूँ मैं बहुत ही फैंसी, बहुत ही आउट गोइंग, बहुत ही क्लासी एलीट है, जिसको कपड़ों का बहुत शौक है, जो ब्रांडेड कपड़े पहनती है। बट राइट। अंदर से वो एक नॉर्मल लड़की है जिसे ये पता है कि मेरे आसपास जो है वो छिछोरे हैं, टिल्लू है, साथ में टीका है, उन्हें मुझसे राइट। शादी करनी है। मुझे पता है कि बेवकूफ है, हम्म। मतलब मुझे बताया गया है बकायदा, मुझे हम्म। सिर्फ उनको नचाना है। तो आई एम यूजिंग देम, आई एम जस्ट चिलिंग विद देम, आई एम हैविंग लॉट ऑफ फन। एंड मैं उनसे कोई दोस्ती, मेरी दोस्ती यारी है नहीं, क्योंकि आईक्यू तो मैच करता नहीं है हमारा। बट शो में ऐसा दिखाया दिखाया गया है कि बस I know. मैं मजे कर लूं और वो लोग मेरे पीछे पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो ये रूसा है बेसिकली। मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने में इसलिए आसानी हो रही है क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ रहा। जो मैं कैमरा में दिखती हूँ, फैंसी, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज, एकदम पढ़ी लिखी लड़की है, जो वैसे वो डम हो जाती है जब उनके आसपास, कहते हैं ना, कंपनी मैटर्स अ लॉट। I तो जब know. मेरे आसपास ये लोग होते हैं तब मैं एक अलग जोन में होती हूँ, लेकिन मुझे बाद में ये क्लिक करती है चीज कि ओहो, मैं तो टाइम वेस्ट करी थी, स्टूपिड फेलोज, और मैं वहां से निकल जाती हूँ। तो मेरा मोस्टली सीन में ये रहता है। बट इट इज अमेजिंग प्लेइंग रूसा, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर शोज, बिकॉज कॉमेडी का जो एक कॉमेडी शोज का जो विजन है वो बाकी जो शोज आप देख रहे हैं Hmm. उनसे अलग रहता है। इसमें रोना धोना, बैगेज नहीं आप कैरी करते। हर Right. दिन एक नया एक नया दिन होता है, True. और मस्ती मजाक हमारे सेट पे होता है पूरा, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और इरफान, मुझे एक बात रियलाइज हुई है एक्टिंग में आने के बाद, कि पहले मैं एक्टिंग कर रही थी when I Hmm. was an anchor. I was Okay. actually doing acting to look very intelligent, to Hmm. look very spontaneous, to look, हाँ। Yeah. I know there is something, मैंने इतने समय लाइव में रही हूं तो एक्सपोज हो जाएगा Hmm. इंसान अगर उसको नहीं आता, अगर पकड़ नहीं है अपने सब्जेक्ट पर। Right. बट कहीं ना कहीं हर एंकर एक्ट कर रहा है, यू Hmm. नो एक स्क्रिप्ट दी जाती है, हम एक प्रॉम्प्टर पे कुछ लिखा आता है तो हम उसे पढ़ते हैं, और एक एक अनकॉल्ड कंपटीशन हर जगह आपको दिखता है राइवल चैनल्स में, तो आप कहीं ना कहीं एक्टिंग कर रहे होते हो, Do बट you mean अब to मैं, say, हाँ, yeah, या absolutely. Do you mean to say that this part where you are acting, you are more real? यस, अब मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो मुझे लगता है नाउ आई एम प्लेइंग माई सेल्फ, आई एम चारुल, दिस इज द एक्चुअल चारुल। Mm-hmm. But when I was doing anchoring, I'm not saying that was a bad phase. That was the most beautiful phase. But वहां पर जो मैं कर रही थी, और अब क्योंकि अब मैं दोनों तरफ हूँ, आई थिंक बहुत कम लोग होंगे जो इतने प्रिविलेज्ड होंगे, इतने ब्लेस्ड होंगे, जो True. एक्टिंग और एंकरिंग दोनों कर रहे हैं। तो True. पहले कैमरा लेके रिपोर्टर और मैं एंकर आईफा के रेड कार्पेट पे रहती थी, अब मैं अबू धाबी गई तो मैं आई वाज द अदर साइड ऑफ द राइट द शो। सो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब मैं हूं, पहले मैं कोई और थी, और रोज Right. मैं एक कैमरा फिक्स करती थी, रोज लाइट कैमरा एक्शन, सिर्फ एक ये कमांड नहीं आती थी, उसके लिए काउंटडाउन आता था, 5 Right. 4 3 2 1। सो दैट वाज द ओनली डिफरेंस। एंड मुझे अब ज्यादा इजी गोइंग लगता है क्योंकि मुझे कुछ सोचना नहीं है। आई एम लाइक, मेरा शॉट दिया और मैं आराम से ऐसे बैठ जाती हूँ। बट न्यूज में क्या होता है, यू आर लाइक दिस। तो Hmm. मुझे अभी भी लोग बोलते हैं सेट पे, चाहो आप ऐसे क्यों बैठते हो पूरे टाइम स्ट्रेट। तो मैं बोलती हूँ ये मेरी स्कूलिंग है, ये मैंने जो किया है ना अभी तक लाइव हम करके Hmm. आए हैं, तो वो हमें उसने ये पोस्चर सिखा दिया। और हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी लेकर आए हैं जो एक्टर्स में नहीं है आज की डेट में। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा है, जो मेरी जर्नी रही है, जो मैं सीख कर आई हूँ उससे मैं तैयारी के साथ आई हूँ। मैं थकती नहीं हूँ, मैं एक शॉट देकर ऐसे नहीं बैठ जाती, That's ओहो true. That's true. पानी लाओ, ओहो पसीना आ रहा है, ओहो कोई टचअप करे, वी आर लाइक See, ready there for are the two next things, Charul. One is script. talent, Yeah. which of course you have, and the other is being very down to earth. Uh, Hmm. Most of the characters whom we see doing very good in Bollywood, in the films, as well as in OTT platforms, do you think these two aspects are very important in one's life, being modest? Being modest is always nice. I think आप जितने भी मैंने बड़े लोग देखे हैं, जितने भी मैंने सक्सेसफुल लोग देखे हैं, जितने भी मैंने अपनी बीट के जो यू नो जो जानते हैं अपनी बीट को, चाहे वो कोई भी फ्रेटर्निटी हो, राइट, मैंने उन्हें हमेशा मॉडर्स देखा है। और ये आजकल के जो कुछ बडिंग लोग हैं, मैं एक्टर्स नहीं कहूंगी, एंकर्स नहीं कहूंगी, क्योंकि अब हम बात उन्हीं की करते हैं जो हम हमारे आसपास होते हैं, राइट। Hmm. सो मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक ग्रेस की कमी लोगों में आ जाती है, मॉडेस्टी तो बहुत दूर की बात है।
कई लोगों को ये नहीं पता होता कि लोग जो आपके नीचे के लोग हैं, जिनको लोग नीचा बोल देते हैं, जो कि मुझे नहीं ये शब्द भी बोलना चाहिए, जो स्टाफ है, जिनका जो एक काम, जिनको बाइफिकेट कर दिया गया कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, तो जो आप हल्के में ले लेते हो, अरे इनका तो ये काम है, अरे ये तो छोटे लोग हैं, अरे वो तो ड्राइवर है, अरे वो तो स्पॉट वाला है, अरे वो तो लाइट मैन है, अरे ये तो मेकअप आर्टिस्ट है। तो ये ना मैंने देखा है। और मैं, मतलब मैं क्या बोलूं इस चीज को, मुझे ये लगता है कि हम लोगों को, मैं नहीं कह रही मैं बहुत अच्छी हूँ, राइट, बट मैं बड़ी सिंपल हूँ, तो मैं ज्यादा ना सोचती नहीं हूँ। मैं हर एक को इक्वल रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि आई थिंक इरफान, आपकी और हमारी जो ट्रेनिंग हुई है, जो हमने इतने साल काम किया है, उसमें हमें ना कुछ भी आड़ा तिरछा सोचने का टाइम ही नहीं मिला है। राइट। ये बहुत ध्यान से सोचना है इस बात को, क्योंकि समय मिलेगा तो ही तो दिमाग उल्टा दौड़ेगा। हम्म। हमें समय ही नहीं मिला। हम उस जोन में, उस काम में इतने डूब गए कि हमें आगे पीछे कौन है हमें कोई मतलब नहीं है। हम हर एक को बस विश कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, राइट। सीख रहे हैं। वी नेवर हैड फ्यूटाइल, बोले ना, आइडल हम ऐसे ही खाली बैठ गए हो। तो ये हमने, मे बी ये क्रेडिट उस चीज को जाता है। बट आज की डेट में मुझे लगता है कि मॉडेस्टी से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप जितना ग्रेसफुली, जितना मॉडेस्टी के साथ रहोगे, उतना ही लोग आपको प्यार करेंगे। और कहीं ना Exactly. कहीं लोग उस टाइम पे आपको बोल देंगे, अरे ये तो बड़ी सिंपल है, तो लेकिन बाद में आपके लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे सब, और आपको उतना ही काम मिलेगा भी। ये आजकल हो रहा है। True, true. Charul, I have been talking to lot many young boys and girls in Hyderabad. I have been talking to students in Bangalore. I have been talking to students in Delhi, Delhi NCR. I have seen that there are lot many young people who are really very hardworking and they are ready to learn. They want to diversify from news to the field of acting. How Mhm. much prospect do you think these people have? I think there's a lot of prospect. You have to be consistent. See, there are few prerequisites that you have to follow, right? Come what may, you have to follow this. First, you have to be consistent. You should be comfortable facing the camera. You should have nice diction. You should be presentable. आप जैसे भी दिखते हो, मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, छोटे हो, that doesn't matter. Confidence is the key, but never be overconfident in life. Never, Hmm. ever. You should have lot of contacts. एंड कॉन्टैक्ट्स ऐसे नहीं कि आप सोच सोच के नंबर लगा के उनको मैसेज करने स्टार्ट कर दो। नो, always have contacts, always reach out to people from your heart. Never leave an impression that you are there only for work, you're asking them for work or something like that. आप दिल से जुड़ो, जिसके साथ भी जुड़ो। मतलब ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने आपसे, जैसे ही हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ, उसमें यही कहा कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा है, ना न्यूज में, ना एक्टिंग में। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है कि मैं जो एंटरटेनमेंट शो प्रोड्यूस कर रही थी इंडिया टीवी के साथ, रजत जी के साथ, जो आपके भी बॉस रहे और मेरे भी बॉस रहे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और रजत जी He is से जो मैंने amazing. बात सबसे बड़ी सीखी ना इरफान, वो ये कि मॉडेस्ट कैसे रहा जाए। Hmm. आज की डेट में भी वो जानते हैं कि मेरे सामने कौन है, बड़ा है, छोटा है, एम्प्लॉई है, रिपोर्टर है, एंकर है, कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। आई हैं तो उठ के आपके लिए चेयर भी खिसका देंगे। मतलब इतनी बड़ी He is हस्ती, amazing. उन्हें कैसे, मतलब उन्हें किस चीज की जरूरत है। और Hmm. मुंबई में वो आए हैं तो इतनी बार हम लोग इवेंट्स में साथ में गए हैं। टीवी का दम छोटा पर्दा नहीं है बड़े पर्दे से कम। ये कॉन्क्लेव मैंने ही पूरा प्लान किया, और ये Hmm. पूरा दिन कॉन्क्लेव चला था। मनीष पॉल और मैंने होस्ट किया था, and Rajat ji was there with Ritu ma'am, and we had a good, I think 400 actors came that day. Hmm. एक एक्टर ऐसा नहीं था जो नहीं आया हो। कैन यू बीट दैट? पता है Hmm. क्यों? क्योंकि Hmm. सबसे मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, और सबको That's पता right. था चारुल हमारे लिए भी करती है, तो Hmm. हम इसके शो में आएंगे। अगर मैं सिर्फ अभी बात में उसी बात पे लौट रही हूँ, अगर मैं सेल्फिश हूँ, अगर मैं सिर्फ लोगों को रीच आउट करूं, मैं आपसे इरफान बात करूं कि आप मेरा इंटरव्यू लोगे, मैं आपसे तभी बात करूंगी, वो गलत होगा फिर। करेक्ट? एक बॉन्ड रहता है आपका, एक कनेक्टिविटी रहती है। तो मैंने जो प्री रेक्विजिट्स बताए वो यही है कि डिक्शन, कॉन्फिडेंस, योर प्रेजेंस एंड कंसिस्टेंस इज द की। तो एक्टिंग और एंकरिंग ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। मैंने अगर स्विच किया है एक्टिंग से, एंकरिंग से एक्टिंग में, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक अलग तरह की स्ट्रगल है, न्यूज में एक अलग तरह की स्ट्रगल है। स्ट्रगल मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि रास्ता इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होता है। हमने 15 साल की एज में
वी वर क्लियर कि हमें क्या करना है। आजकल के बच्चे थोड़े से बटे रहते हैं, वो ये भी सोचते हैं हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले। पेशेंस की कमी फोन होती है। नहीं था। हाँ, फोन नहीं था हमारे जमाने में, ऐसा कि हम, हमारा जमाना कोई इतना पुराना जमाना नहीं था, ऐसा नहीं है कि हम 30-40 साल पहले की बात कर रहे हैं। हम्म, बट जो आजकल के लोगों के हाथ में फोन है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, बच्चे उसमें डूबे रहते हैं। हम्म। बच्चे उसी में देखते हैं, गूगल करके रिसर्च करते हैं। ठीक है, आप यूज कीजिए चीजों को, बट आप एक्सप्लॉइट मत कीजिए, अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आज। ये एक अलग टॉपिक है, ये इस पे हम फिर बात करेंगे। मैं आपके शो में कभी कभी आपसे नहीं, रूबरू डेफिनेटली होंगी, वी आपके विल टॉक। आवर फोकस इज ऑन डिप्रेशन। बच्चों को डिप्रेशन हम्म, से कैसे निकाला जाए। हमारा फोकस है कि वुमेन सिक्योरिटी को कैसे लागू किया जाए। महिलाओं हम्म, को कैसे ज़्यादा अपने डॉटर्स को, मदर्स को, सिस्टर्स को, दोस्तों को, अपने घर वालों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बाकी लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मसला है मुझे लगता है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल। नहीं, आप बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। सबसे पहले तो आपकी खुद की एक सिक्योरिटी, पहले तो आप खुद को सुरक्षित रखिए। हम लोगों तक पहुंचेंगे ही नहीं, आगे तक की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं घूम फिर के अपने पे ही आती हूँ। अपने पे मतलब एज एन इंडिविजुअल, हमें पहले तो खुद को बिल्कुल सिक्योर करना है। सिक्योर फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, सिक्योर फ्रॉम द negativity, secure from the negative vibes around you, secure from the bad company, secure from the excessive use of internet and other stuff. तो आई थिंक पहले हम ये कर लेंगे ना, तो इसी से हमारा आई थिंक 70-80% जो बात हमने अभी, जो सवाल है उसका जवाब हमें मिल जाएगा। तो हम ना अभी बहुत ज्यादा खो गए हैं बहुत चीजों में, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहा है। सो आई थिंक ये अगर हम एज एन इंडिविजुअल कर लेते हैं, आप बताओ एम आई मेकिंग सेंस? बिकॉज अगर हम एज एन इंडिविजुअल ये कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। और जहां तक डिप्रेशन की बात है, इसमें भी कंसिस्टेंसी है, मेहनत में कंसिस्टेंसी है ना, वैसे डिप्रेशन में भी है। बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स दोज बैड थॉट्स और दोज थॉट्स दैट आर मेकिंग अस डिप्रेस्ड Three with things really consistency. keep on troubling me, Charul. One thing, I have seen there's a huge increase in the rate of suicide in young people, and then depression is definitely there. The third problem is the youth internationally, globally, they are moving towards drugs. I mean, what is your message for the youth? How should they handle their stress? आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहूंगी यूथ को, कि प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। स्टॉप कंपेयरिंग, बिकॉज आप अपने आप में स्पेशल हैं। आप छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, स्टार्टअप है, पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक शुरुआत है। सो डोंट गिव अप फर्स्ट। सेकेंडली, स्टॉप वॉचिंग, stop accessing, stop absorbing whatever you see on social media, because social media is showing you something else. Social media is showing you something uh, that is not real. It is real, you know. आजकल हम जो रील्स देखते हैं, आजकल तो कंटेंट देखते हैं जो फ्लोट होता रहता है, आप ब्राउज करते रहते हैं। हम भले कितना सोच रहे हैं कि हम तो टाइम पास के लिए देखते हैं, थोड़ा सा हम अच्छा फील करते हैं 10-15 मिनट, लेकिन वो 10-15 मिनट में भी हम क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं। Start watching content. If you really are addicted, right, then start watching content that is good for your health, that is Ayurveda, that is, naturopathy, that is something motivational. But stop comparing. क्योंकि आजकल इरफान सबसे बड़ी क्या चीज हो रही है कि हम सोशल मीडिया देख के ना ऐसे हो जाते हैं, बीइंग एन एक्टर ऑल्सो, अरे उसको तो इतना काम मिल रहा है, अरे हम तो खाली बैठे हैं, अरे वो देखो उसने इतने अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, अरे वो तो फॉरेन जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो, जिसमें हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। चारुल, बच्चे ये देखते हैं कि वो, हाँ। चारुल, वन पॉइंट आई वुड लाइक टू रेज दैट कि आपने एक रास्ता चुना है ह्यूमर का, कॉमेडी का, हम्म, और हम्म, उससे लोगों को डी स्ट्रेस करने में बहुत मदद मिलती है। आपको क्या हम्म, लगता है कि जैसे कपिल शर्मा का शो है, आपका शो है, दे आर वेरी वेरी पॉपुलर, और बड़े बड़े हम्म, ब्रांड्स जो है उसको स्पॉन्सर भी करते हैं। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि ह्यूमर का कितना बड़ा रोल है अपनी सोसाइटी को, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट को, अपने घर को खुशनुमा रखना? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। आई थिंक ह्यूमर इज द की। ह्यूमर के बिना तो लाइफ
बेरंग है। आई मीन आई कांट इवन थिंक अबाउट अ लाइफ दैट इज विदाउट ह्यूमर। और जैसे आपने कहा कि शोज इतने पॉपुलर हैं, हमारा शो है, कपिल का शो है, क्या होता है, ये हम एक चंक देखते हैं इरफान, राइट? अब हम्म। मैं आजकल न्यूज कम देखती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो जाता है। सॉरी टू से दैट। अब मैं कॉमेडी शो आधा घंटा देख रही हूँ, मुझे वो राइट। डी स्ट्रेस कर रहा है। राइट। मैं शूट वो करती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, हम सुबह 9 से 9 भी शूट करते हैं कई बार, मेरे तो 2-3 सीन होते हैं, मेरा तो दोपहर में पैकअप हो जाता है। तो हम्म। सारे आर्टिस्ट पूरा टाइम हंसते हैं। मतलब आई नो। ये क्योंकि हमें वो शो में एलिमेंट ऐड करना है, वो लाना है फ्लेयर। तो हम्म। हमारे सेट का बिल्कुल माहौल भी है वो ऐसा रहता है कि हम हंसते ही रहते हैं। सारे सीजन एक्टर्स हैं, जोक मारते रहते हैं। मैं ना शुरू शुरू में जाती थी, मैं पेट पकड़ के हंसती थी क्योंकि मैं न्यूज वर्ल्ड से गई थी जहां आई पे नो। आप बिना बात के स्माइल भी नहीं कर सकते। हम्म। तो ह्यूमर, और मैंने सबको देखा है, सारे मस्त मौला हैं, मतलब वो हु लोग ना हु इज द भीड़ मोस्ट दुनिया से कटे हु हुए इज हैं। द मोस्ट हाँ। फनीएस्ट कैरेक्टर इन योर सीरियल? जैसे तिवारी जी हैं, अ, वो भी लाजवाब हैं, भाभी जी हैं, वो भी लाजवाब हैं, हप्पू सिंह है, वो भी अमेजिंग है। हु यू फील इज द मोस्ट फनीएस्ट पर्सन? अ, मैं सच बताऊं तो एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है, बट मुझे सक्सेना, बाप रे बाप, मतलब आप उनको मिलोगे ना, मैं आपकी बात कराऊंगी उनसे। ही हम्म। इज अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर। हु? वो हमेशा सीधा जवाब ही नहीं देते। आप बोलोगे ना हाँ जी मैं आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप उनको इंट्रोडक्शन दोगे, वो आपको बदले में कुछ ऐसा बोलेंगे कि आप अगला सवाल ही भूल जाओगे। आप किनकी मतलब बात कर एक, रहे हैं? मैं सक्सेना की बात कर रही हूँ। ओ माय गॉड! ही इज अमेजिंग। तो ही इज अमेजिंग। और एक है वैभव जो कि टीका बनते हैं, हाँ। उन्होंने काफी सारे एड शूट्स किए हैं, बहुत राइट। बड़ा नाम है। राइट। वो मतलब उनका नाम सिर्फ हेलो, मतलब वो उसके बोलने के बोलते हैं, और हेलो हम्म। कहाँ हो, उसी हम्म। में हंसी आ जाती है। तो हमारे शो में जितने भी कैरेक्टर्स है ना, सारे कमाल हैं। और हंस हंस के मुझे लगता है हमारा, मेरे में पहले आयरन डेफिशिएंसी थी एक टाइम पे, आई वाज अनीमिक। मेरा ओ। अभी हीमोग्लोबिन तो 13 पहुंचा हुआ है। और मैं तो वही खाती हूँ जो मैं पहले खाती राइट। थी। तो राइट। आपने जो सवाल किया ना, उसका जवाब भी मैंने यहाँ पर दे दिया है कि ह्यूमर लाइफ में बहुत जरूरी है, उसे ऐड कीजिए। कैसे ऐड करना है वो आप देखिए, शो देखना है आपको वो देखिए, आपको इंस्टा पे कंटेंट देखना है ह्यूमरस वो देखिए। आप बस हंसिए, यू नो, दिल से हंसिए। या आपके दोस्त याद रखिए 3-4 ऐसे साथ में जो बिना सर पैर की बातें करें, क्योंकि लॉजिकल बातें आजकल दुनिया करेगी, सब अपने आप को दिखाएंगे, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट, आई एम वेरी वेल रेड, आई एम दिस, आई एम दैट। बट आपको 2-3 लोग ऐसे लाइफ में रखने हैं हमेशा, बिल्कुल आपको लगे जिसको आप बोले भाई ये क्या है, और आप देख देख के हंसे, यू I नो, know. What is दिस इज what is लाइफ। what is your next move? I mean, you'll be continuing in this serial, or do you have something on your cards going for some movie, some films? सी राइट नाउ आई एम नॉट शूटिंग फॉर भाभी जी घर पर है, बिकॉज हमारी भाभी जी घर पर है की शूटिंग चल रही है देहरादून में। वी आर शूटिंग इट इन अ बिग वे, वी आर Okay. गोइंग बिग। भाभी जी घर पर है, फिल्म बन रही है अभी। तो ये Oh. आपको Z5 पे नजर आएगी। और बड़े प्लेटफॉर्म पर है ये, तो उस पे मेरा तो कोई सीन नहीं है क्योंकि मैं रेगुलरली अभी नहीं कर रही थी। माई ब्रदर गॉट मैरिड in the month of September, so I was there in the US Congratulations. for 2 months. Hmm. And when I was back, thank you so much. When I was back, तब तक ये पूरा इनका प्लान हो गया था। बट मेरा साइमल्टेनियसली एक ट्रैवल शो आया है डीडी पर, दूरदर्शन पर, Okay. देसी रसोई से, जिसके 26 एपिसोड्स आगे मुझे शूट करने हैं अभी दोबारा। So Okay. I'll be covering the entire nation, whole India, all states, and there's no script, एक्सटेम्पोर जाइए, आपको अपना तड़का लगाना है, अच्छा अच्छा खाना खाना है। और जो भी हम हर सिटी की हाईलाइट है वो दिखाएंगे। एंड ट्रेडिशनल फूड की तरफ हम लौट रहे हैं। तो आपने ये सवाल किया ह्यूमर कितना जरूरी है, बहुत सारी चीजें मैं भी मेरे शो से सीख रही हूँ कि हम Hmm. वी आर गोइंग बैक टूवर्ड्स आवर रूट्स। Yes. खाना मिट्टी के बर्तन में बनाए, खाना चूल्हे पर बनाए, पॉसिबल नहीं है घर में तो, बट आप कॉपर के बर्तन यूज करें, लोहे के बर्तन यूज करें। आप जो आजकल हम माइक्रोवेव और ये सब कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। आप पानी पीजिए तो आप मिट्टी के बर्तन में रखा पानी पीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल मैंने किया अभी लास्ट ईयर, एक्सटेंसिवली मैंने ट्रैवल किया, तो मैंने ये देखा कि हम लोग वही लौट रहे हैं जहां से हम आए हैं। जो पुराने जमाने True. की चीजें थी जिसपे एक बार हम लोग हंसा करते थे कि True. अरे, है ना, अरे, अब वही चीजें फैशन में आ रही हैं, इट्स True. कॉल्ड That's द right. लेटेस्ट फैशन। Uh, I think this is really great, and the kind of things you are doing. I'd be sending you a feature film script. Just it's in the form of a book. You just go through it. You may like it,
And I'd be also talking to a few of the investors who are based abroad. Mhm. Let's see how it takes shape. When do Okay. you plan to come to Bangalore or Mumbai, something like that? I'll be traveling for my show, I think the month of April. Like I mentioned, this is a travel show that I'm going to host. So I think I'll be there. Definitely give you a call and we'll catch up for sure. This was really very, very interesting, and I would like sometime when I would be in the classes with my students, it would be very nice if they can talk to you. They have, because I have seen there's a lot of generation gap, and the young people, they keep quiet. They do not talk much. If you ask them, they Gen give Z, one to word be or very two. precise. Hmm. Gen Z. Yeah. So I want them to be happy, more fun-loving, and they should not feel Why lonely. not? They should never Why feel not? lonely. मुझे भी बहुत अच्छा Because लगेगा there are उनसे बात senior करके. people, there are teachers, parents, Yeah. we all love our, they are the future of our country, Oh. and we really need to think about them. नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा बात करके क्योंकि टचवुड हमने इतना मुश्किल टाइम मतलब हमने जो हार्ड जर्नी हमारी रही है जिसमें कि हमने बहुत मेहनत की है. तो जो पहले मेहनत करके मैं आई हूँ, अब मैं एक्टिंग कर रही हूँ जिसमें कि मेहनत उतनी है बट गैप है. मतलब यहाँ पे आप 2 घंटे फ्री भी होते हो, अनलाइक Mm. न्यूज जहां पर आप Right. नॉन स्टॉप 8 घंटे लाइव हो या आप रिपोर्टिंग करते थे जैसे आप जगह जगह जा Mm. रहे हो. तो हमने ना वो मेहनत की है, तो मैंने दोनों तरह का एक्सपीरियंस ले लिया है. और अब मुझे ये बात समझ में आ गई है और मुझे बहुत सारे एक्टर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं. Mm. चारुल, वी व्हेन वी लुक एट यू, वी आई मीन वी अडोर योर एनर्जी लेवल्स. लाइक हाउ व्हाट डू यू ईट? सो Mm. आई जस्ट टेल देम जनरली दैट आई वांट टू स्टे हैप्पी. आई थिंक मैं Mm. अंदर से खुश रहती हूँ क्योंकि आप इतना सीख कर आते हो और आप इस लेवल पे अब इतने सीजन एक्टर्स के साथ आप काम करते हो. आप तो मैं आज भी ना अपने आप को ऐसा फील नहीं करती कि मैं एक्टिंग में नहीं हूँ. मुझे ये लगता है कि मेरी वो जर्नी थी, अब मेरी ये दूसरी जर्नी स्टार्ट हुई है. जैसा कि मैंने कहा, मैं चलते चलते ये कहूंगी कि नेवर कंपेयर. चाहो तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि भाई मैं तो एक अलग जगह से आई हूँ, ये मेरा बीट बदल गया है. और अब मैं ये सोचूं कि भाई उनका पर डे इतना, उनके सीन 15, मेरे 2 क्यों? तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा, मैं Right. तो डिप्रेशन में आ सकती हूँ. तो मैं ये सोचती हूँ, सबसे पहले तो आप जिसको भी मानते हो थैंक यू बोलो ऊपर वाले को, ठीक है? और फिर आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो जिन्होंने आपको इतना बढ़ाया, इतना आगे सिखाया, इतना पढ़ाया लिखाया. फिर आप अपने बारे में सोचो. तो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ. तो जितने भी इरफान सर के जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, प्लीज आप खुश रहिए पहले. खुश रहेंगे ना तो आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं वो आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगी. कभी भी स्ट्रगल वर्ड आपके मुंह से नहीं निकलेगा बिकॉज हैप्पीनेस इज द की. If you are happy from within, you will pick anything and everything. You will do whatever you wish to do. So Thanks. please stay happy and keep Thanks a lot. smiling. And Thank, thank you for thanks a having lot. me. Thanks a lot, Charul, for giving this wonderful message and a bold message that please be happy and everything is going to be just great. Thank you Yes. very much. God bless you. And it was great Thank you for connecting. having me. Thank you. It was great connecting. Thank you. Same here.